Good afternoon, students. In this lecture of digital image processing, we are discussing the topic that is the histogram specification. In the previous lecture, we discussed about what is the histogram processing, and for the histogram processing, we plot some the number of pixel with comparison to the gray level values and represent any image in some specified form so that the number of pixels are to be arranged in the form corresponding to its gray level value. So some of the images are very bright and some of the images are to be brightened by increasing the contrast. So the histogram processing is to be used to specify how number of times the gray level values or the number of pixels are to be represented in that image. So the histogram processing is represented by two ways. First, the histogram is equivalence or the equalization that we already discussed. The example is already explained in the previous lecture. So now we are discussing the next procedure for the histogram processing. The second one is the histogram specification, or we can say that the histogram matching. तो हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन में भी क्या है कि हमें एक ओरिजिनल इमेज दी गई है जिसमें ग्रे लेवल वैल्यूज़ गिवन है और नंबर ऑफ पिक्सल्स गिवन है. वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मलाइज्ड image or the modified image by using the histogram equivalence or the histogram equalization. बट डिफरेंस इज डैट हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में हमें सिर्फ इनपुट इमेज गिवन होती है, ओरिजिनल इमेज गिवन होती है, उसकी नॉर्मलाइज्ड और द मॉडिफाइड इमेज जो है हम डिफाइन करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द वेरियस मैथमेटिकल फार्मूलाज. बट इन केस ऑफ हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन एन अदर thing is also given, that is the desired image. जो यूज़र को रिक्वायरमेंट होती है that is also given. So we have the original image also and we have the user interaction also. So user has the control in case of the histogram specification, but in case of histogram equalization the user has no control in case of any modification. So in that case we have given the original image and also given the desired image. So we have to calculate, we have to draw the histogram equalization for both the images and then map those images to find the modified image, a new modified image. So we have the original image like this and we have the desired image. दोनों गिवन है. दोनों केसेस में हमने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप इज फॉर द हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन इज टू फाइंड द histogram equalization for both the images. So first of all we calculate the histogram equalization for the original image. That is, first of all the table is to be drawn like this. In the previous example also we already discussed. So gray level values are written like this, 0 to 7. The number of pixel values are given. So we have to calculate the total number of pixel value to find the probability density function. So इन सभी का सम, नंबर ऑफ पिक्सल जितने गिवन है सभी का सम कितना है यहाँ पे? 64. So next step is the probability density function, which is calculated by the number of pixel divided by the total number of pixel. So 8 divided by 64 becomes 0.13. 10 divided by 64 becomes 0.16. 10 divided by 64 again same the value. 2 divided by 64 0.03. And ऐसे ही हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे. And then we have again calculate that the sum of these all components, the probability density function में जितने सारे ग्रे लेवल वैल्यूज़ में वैल्यू आती है that becomes 1. तो इनका सम जो है वो ऑलवेज 1 होना चाहिए किसी भी एग्जाम्पल में. सो द कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन जो है वो कैसे निकालते हैं? बाय एडिशन, बाय एडिंग द प्रीवियस probability density function value. So स्टार्टिंग में वैल्यू रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट में क्या है? 0.16 ने प्रीवियस वैल्यू को ऐड किया 0.29.
अगेन 0.16 में प्रीवियस वैल्यू को ऐड किया, प्रीवियस क्या है अब 0.29, इसमें एडिशन करके 0.45, अगेन 0.03 में 0.45 ऐड किया 0.48, ऐसे हमने सारी वैल्यूज़ एंड तक कितना आया 1 वैल्यू। सो कॉमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन भी निकाल लिया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, L-1, L-1 क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रे लेवल कितने हैं 8, 0 इंक्लूडिंग, तो 8-1 क्या हो गया 7, विच मीन्स डैट 0 से अगर स्टार्ट करते हैं जो एंडिंग वैल्यू है ग्रे लेवल की वो यहाँ पर लिखते हैं, डेट इज 7 इंटू CDF। CDF क्या है, कॉमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू निकाली है, तो सभी की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। एंड देन फाइनली क्या है, लास्ट में क्या है, राउंड ऑफ वैल्यू हम निकालते हैं, जहाँ पर H लिखा है विच इज़ रिप्रेजेंट फॉर द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। सो 0.91 है तो राउंड ऑफ वैल्यू 1 2 3 3 5 6 7 7। So we get the histogram equalization for the original image. Now in the next we have to calculate the histogram equalization for the target image, that is the desired image। उसके लिए भी क्या है, हम सेम प्रोसेस करेंगे। 0 to 7 ग्रे लेवल वैल्यूज़ गिवन है, सो ग्रे लेवल वैल्यूज़ जितनी गिवन है, नंबर ऑफ पिक्सल्स गिवन है, उनका सम कर लेंगे। देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल। सो CDF बाय एडिंग द प्रीवियस वैल्यू ऑफ PDF, L-1 इंटू CDF दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड देन SK क्या बताता है, स्पेसिफाइड टारगेट इमेज और द स्पेसिफाइड हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन फॉर द इमेज। सो दोनों टेबल्स के, एक ओरिजिनल इमेज टेबल गिवन था और एक क्या गिवन था हमें, डिज़ायर्ड टेबल गिवन था फॉर द इमेज। सो दोनों का फर्स्ट स्टेप क्या है कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करो फॉर द ओरिजिनल इमेज। सेकेंड वन में क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करनी है फॉर द टारगेट इमेज और द डिज़ायर्ड इमेज। एंड द थर्ड स्टेप इज मैपिंग। तो ग्रे स्केल वैल्यू सेम है 0 to 7। फर्स्ट H क्या रिप्रेजेंट करा है, ओरिजिनल इमेज में जो हिस्टोग्राम की राउंड ऑफ वैल्यूज़ आई थी वो लिख ली। एंड S क्या है, जो राउंड ऑफ वैल्यू डिज़ायर्ड इमेज की आई थी आफ्टर कैलकुलेटिंग द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, वो वैल्यूज़ लिख ली। तो ये वैल्यू H की है और ये S की है, ओरिजिनल इमेज की एंड डिज़ायर्ड इमेज की। सो वी हैव टू मैप दीज वैल्यूज़। मैपिंग कैसे की जाती है, तो मैपिंग के लिए क्या है, ग्रे स्केल वैल्यू 0 यहाँ पे चेक करना है 0, एंड यहाँ पर क्या है 1। सो ओरिजिनल इमेज में 1 है, तो जो डिज़ायर्ड इमेज है उसमें चेक करना है कि 1 वैल्यू आती है, नहीं आ रही है, तो 1 नहीं आ रही तो उसके आगे वाली वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 किस ग्रे स्केल वैल्यू पे था, 4, तो यहाँ पर मैपिंग क्या आ जाएगी 4। नेक्स्ट इज वैल्यू इज ग्रे स्केल वैल्यू इज 1 एंड रीजनल इमेज में राउंड ऑफ वैल्यू क्या कितनी आ रही है 2, अगेन चेक करना है 2 कितने ग्रे स्केल लेवल पर वैल्यू आ रही है 4, वी राइट 4। देन ग्रे स्केल वैल्यू 2 पे ओरिजिनल इमेज में क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे चेक करना है कि 3 वैल्यू कोई आ रही है, नहीं, तो 3 के ग्रेटर कोई आ रही है 4, तो 4 पे क्या है 5 वैल्यू, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 5, अगेन 3 अगेन 5 आ जाएगा। देन 5 वैल्यू है, 4 पे 5 आ रहा है तो 5 वैल्यू है, नहीं, उससे ग्रेटर है 6, 6 पे क्या है 6, ग्रे स्केल मैपिंग में क्या लिख देंगे हम 6। अगेन द 7 वैल्यू 7 आ रहा है, 7 आ रहा है तो 7 लिख देंगे। तो ऐसे ही वैल्यूज़ जो है हम मैप करते चेक करते जाएंगे। तो 5 था यहाँ पर, 5 नहीं था तो 6 था, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई थी 6, अगेन 6 आया था तो अगेन यहाँ पर 6 वैल्यू आई थी। 7 के लिए चेक किया तो 7 वैल्यू यहाँ पर लिख दी, अगेन 7 है तो अगेन 7 पे ग्रे स्केल लेवल्स जो हैं वो लिखे हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज डिज़ायर्ड राउंड ऑफ वैल्यूज़। सो the mapping is to be done, the main focus is on the mapping, on the basis of the mapping we get the desired image। so the modified image becomes like this, we have the table।
सो फाइनल रिजल्ट जो है वो अभी निकालना है। तो फाइनल रिजल्ट के लिए क्या है कि हमारे पास ग्रे लेवल वैल्यूज़ गिवन है। ग्रे लेवल वैल्यूज़ कितनी है 0 to 7 रिमेन्स द सेम। सो द नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यूज़ कितनी है। सो ओरिजिनल जब हमारे पास क्वेश्चन आया था इसमें क्या गिवन है, डिज़ायर्ड इमेज जो आउटपुट आनी चाहिए, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसके जो स्पेसिफाइड इमेज निकालनी है उसके करीब इमेज जो है वो हमें फाइनल चाहिए, मॉडिफाइड इमेज जो है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 ग्रे लेवल्स जो है वो 0 है, तो उसमें भी क्या आ जाएंगे 0। तो फोर्थ में यहाँ पर वैल्यू 20 है, 20, 16 एंड 8। तो आफ्टर मैपिंग हाउ वी गेट द वैल्यूज़ लाइक दिस। सो इसमें क्या है, फोर्थ पे जो वैल्यू है वो 18 आ रही है, उसे हम कैसे करेंगे, 4 मैपिंग में 4 है, फर्स्ट इज ग्रे स्केल पे 4, तो उसके लिए ग्रे स्केल वैल्यूज़ क्या है 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 में ओरिजिनल टेबल चेक करना है, 0 एंड 1 में कितनी वैल्यूज़ है 8 एंड 10, 10 प्लस 8 इज 18। सो आंसर इज 18 फॉर द फोर्थ पिक्सल। सो फिफ्थ पिक्सल पे वैल्यूज़ कितनी आएंगी 12। तो 12 क्यों है, नेक्स्ट इज 5। तो 4 दोनों में से जो मिनिमम आती है वैल्यू करीब आती है वो हमने लिख देनी है। नेक्स्ट 5 के लिए चेक करेंगे, तो 5 के लिए क्या है 3 एंड 2। 3 एंड 2 में ओरिजिनल टेबल में चेक करना है, 3 एंड 2 में कितना है 10 एंड 2 इज 12। सो वी गेट द 12 वैल्यू, क्लियर। एंड 6 में क्या आ रहा है 5 एंड 4। 5 एंड 4 पे वैल्यू कितनी है, 5 एंड 4 पे 12 एंड 16 बिकम्स 28। और नेक्स्ट लास्ट में कितनी है 6 एंड 7, दैट इज 4 प्लस 2 इज 6। सो लास्ट में जो वैल्यूज़ आती हैं दैट इज 6 एंड 7 पे वैल्यू इज 6 एंड 6 पे ग्रे स्केल लेवल पे वैल्यू है 28। सो वी गेट द मॉडिफाइड इमेज लाइक दिस with the number of pixels that are 0, 0, 0, 0, 18, 12, 28 and 6. We have to first of all we have to calculate the histogram equalization for the original image. Second step, histogram equalization for the desired image. Third step is the mapping, and the fourth step you have to compare the mapped image, mapped table with the original table of the original image, and then we get the final modified image from that point. So in this way we get the image, modified image, which means that in this we have we need to know about the specified image. We get the specified image so that the user has the control for the image enhancement.